Hello and welcome back everyone to chemistry classes. So we are continuing with our chemistry, quantum chemistry. And in our last two videos, what we have seen is that why was there a need for quantum chemistry? क्योंकि Bohr model जो है वो fail हो गया था, and there were a lots of experiments which could not have been proved based on the postulates which were given by Bohr. And then we went to the Heisenberg uncertainty principle, and he also said that you cannot define the position and the momentum at a time with full certainty. And then we went into assuming or because of the de Broglie that our electron is not only behaving like a particle, but it is also behaving like a wave. It is having both the characters, and we were looking into the wave character of electron. Okay, wave character of the electron. So based on the wave character, we got to know, because we what we want is that this wave character should be linked with our daily observation of an electron. So what we ultimately proved is that whatever the wave is, whatever the electron is behaving, the wave is not a normal wave, it is a standing wave. Okay, that means that it is having a single frequency. Okay. uh, and what we did was we were then jumping to a normal wave. We had a very long wave, and what we said that since it is a very long wave, it is very difficult for us to precisely calculate the momentum as well as the position. If even if we calculated one, other would have deviated. If we calculated the other, the momentum would have been deviated. So that is why what we did was we constrained our wave. So what we did was, instead of putting a normal big wave, we constrained our wave into a box, and we put boundary conditions to it. So this is what we did. So if it is the, like, if we this was a string. Okay. So we basically put our wave into this length of box, and then we said that this can be a possibility. Okay, then we said that this can be a possibility. Okay, then we said other possibilities also can be there as we move to higher frequencies. But we can move to higher frequencies, but the fact is that every particular mode has single frequency. So every mode, if I'm talking of this mode, then this is having a single frequency. If I'm having this mode, it is having a single frequency. That is why they are called standing waves. But the fact is that frequency can change. Okay, but frequency has to be fixed. Every particular atom in that string or has to have a single frequency. So that is the importance of a standing wave. So what we are going to do now is that we need to jump to the equation of a wave. Okay, I hope you already have this idea that this equation is called the Schrodinger equation. Okay, so what we need to do is we need to jump to the Schrodinger equation. So मैं आपको केवल ऐसे ही जंप नहीं करवाऊंगा कि this is the Schrodinger equation and this is what. I want you to understand why we got into this. Okay, so we are writing the same wave. Okay, we have concised the wave to a single length. So 0 से L इसकी length है. ठीक है, and this is the strings equilibrium point. This is the string. Okay, and this is the displacement which the string will have. Okay, and I'm assuming that we are at our ground frequency. This is the basic frequency. Okay, so what you can see right now, if I have to calculate d is the displacement. Okay, d is displacement. Okay, and see. Okay, so what we have to see right now here is that if I have to calculate d as a this, supposedly I have to calculate d at this point. Okay, then I have to calculate d at this point. Okay, displacement at this point, and supposedly this is x. Okay, this is the length from the, not the equilibrium distance, but length from the start. Okay, start 0 से हुआ है, and this is going to L, so this is length. I am denoting it by x. So d displacement basically is depending on x, this parameter जो कि length. Okay, so यहाँ पर अगर मैं displacement calculate करूंगा, it will be different. यहाँ पर अगर मैं calculate करूंगा तो it will be different. So displacement basically
is becoming a function of the length. Okay, a parameter called a coordinate x, where the uh, wave is moving. Okay, another point which we have to find out here is that along with this, so how this wave is not static, as I कि this is electron is moving like this wave is actually a standing wave, it is moving with a certain frequency. तो ये क्या करेगी, ये ऊपर जा रही है और उसी frequency से नीचे भी आएगी. So there will be a path like this. Okay, it will move up, it will move down, it will move up, it will move down. So यानी कि जब ऊपर से नीचे इसको आना है, then there will be a point where it will be here, then it will be at the equilibrium, then it will go down. Okay, then it will go down. So it is vibrating, the string is vibrating, it is not static. ठीक है, तो अभी since the string is vibrating and at a particular x, अगर मैं x फिक्स कर दूं, अभी तो हमने ये देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो x पे डिपेंड कर रही है कि अपने डिस्टेंस देखना कहाँ पर है. ठीक है, अगर बाहर यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, तो हर पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है. ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये वेव केवल अपनी जगह पे स्टैटिक ऐसे नहीं है, इट इज मूविंग. तो अगर सपोजिटली मैंने एक्स फिक्स कर दिया, ये एक्स फिक्स कर दिया, तो जब शुरू में था दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, जब स्टार्टिंग में था तो सेम एक्स पे डिस्प्लेसमेंट वाज लार्जर. ओके, व्हेन द स्ट्रिंग वाज मूविंग डाउनवर्ड at certain time, same x पे the distance got shorter. So the displacement is basically also dependent on the time. ठीक है, ये किस टाइम पे ये नीचे थी, किस टाइम पे ये नीचे है, किस टाइम पे नीचे है. सो फ्रीक्वेंसी बेसिकली टाइम इज रिलेटिंग इट टू द फ्रीक्वेंसी ओनली. सो किस टाइम पे ये नीचे आई, किस टाइम पे यहाँ पर है, किस टाइम पे यहाँ आई. सो डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद द टाइम ऑफ दैट particular wave. Okay, so it is again a function of x and again a function of time. So displacement has become function of two things, coordinate and time. So if this is a 1D box, so supposedly if I had a 3D box, तो 3D box है, then this wave will be a 3D wave. So उस समय क्या होगा कि जो displacement होगा, that will become a function of, as you would assume, x, y, z, and a function of time. Okay, and one thing what we are assuming over here is that, see, this wave is not static. मतलब भले ही वो लग रहा है static है, displacement है. The reason it is static is because we have basically fixed its borders. Supposedly we would not have had fixed its border, तो क्या होता, would have a velocity. Because there would have been a velocity apart from a frequency, it would have a velocity also. So, and when we talk on the classical, on the real ground, wave is actually moving. Okay, ऐसे से वो move कर रही है. यहाँ पर तो हमने फिक्स कर दिया, तो ऊपर नीचे है, तो there is a velocity also. Apart from frequency, there is a velocity also with which the wave is moving. So when we're talking of classical wave equation, we also need something called velocity of that wave to define that wave. Okay, and the equation which defines this wave is that, I hope you understood कि हम करना क्या चाह रहे हैं. हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, हम ये देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारी वेव का, इट इज बिकमिंग अ फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट. अगर तो सपोज इट 3D बॉक्स है, तो इट विल बिकम अ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई जी, and also it is a function of time. And this is a problematic thing from us, क्योंकि what we are going to derive right now is not the time dependent Schrodinger equation. We are going to derive the time independent Schrodinger equation. So what we can do right now, so one thing which we have to assume to keep ourselves away from this time problem is that we're assuming that the velocity with which wave is moving, it is independent of time. It is not changing with time. So velocity is independent of time. This is a thing pendant which we need to assume. Okay, so once you are assuming this, so what I can write is that I'm writing displacement is a function of x, y, z coordinate के लिए I'm defining, instead of f I'm defining this psi x, y, z. So we'll come to what psi is, but right now it is just the coordinate which represents, it is a position coordinate, basically function of the position coordinates. And
इसको मैं बिकॉज आई फिक्स द वेलोसिटी आई कैन राइट दिस एज e raised to power I 2 pi frequency into t. This is the thing which I have got. Okay, displacement which is a function of x, y, z and time. Displacement is a function of x, y, z and time. Okay, I can write it like this. So now what we have to do is हमें ये चीज देखनी है कि अब हम फर्दर कैसे प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन एंड द क्लासिकल इक्वेशन ऑफ अ वेव. क्लासिकल इक्वेशन ऑफ अ वेव कैसे रिप्रेजेंट होती है, देखिए. डेल स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट आई एम राइटिंग फॉर, चलो आई विल राइट फॉर ऑल द कोऑर्डिनेट्स. dx स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डी बाय डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डी नहीं है ये डेल है, प्लस डेल स्क्वायर डी by del z square. Okay, so one thing we have to keep in mind that this is del, okay, not d. Okay, partial है, derivative नहीं. Partial इसलिए because d is also a function of two coordinates. D is a function of x and time. तो इसलिए हमको del लिखना पड़ेगा. When if d had been a function of only coordinate or only time तो d लिख सकते थे. But this is function of two things, so we have to write del. Okay. तो यहाँ पर आके 1 by velocity का स्क्वायर into, since it is also a function of time, so del by del t square. So this is the classical wave equation. So this जो हमारी वेव है वो इसको फॉलो करेगी provided that we should have some boundary conditions. Okay, तो अभी देखिए ये हो गया यहाँ पर. okay. अब हमने d को जो यहाँ लिखा है, देखिए, तो अगर हम अज्यूम करेंगे टाइम इज जीरो. इफ टाइम इज जीरो इट इज, हमारी जो वेव है वो इनिशियल पोजीशन पे है, इट इज स्टक विद द बाउंड्री. ओके, टाइम इज जीरो, तब अगर आप यहाँ पर डालेंगे तो e इज पर जीरो हो जाएगा. e इज पर जीरो इज 1. सो d एज अ फंक्शन ऑफ x y z becomes psi as a function of x y z. Okay, it becomes a function of the position coordinates only. Displacement becomes a function of position coordinates only. Okay, then अगर t थोड़ा बढ़ाया, 0 प्लस 1 बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देर इज सम इंक्रीमेंट, फ्रीक्वेंसी से कुछ इंक्रीमेंट हुआ हमारा टाइम का. ठीक है, जैसे टाइम बढ़ाया तो अभी आप देखिए, इफ आई रिप्लेस टाइम विद 0 प्लस 1 बाय फ्रीक्वेंसी, आई विल गेट e raised to power I 2 pi. Okay, this is what I'll get. And if you derive the e raised to power 2y, so you will get 1. बेसिकली इसको आई cos x प्लस आई sin x करके होता है. दिस इज बेसिकली cos x cos 2 pi प्लस आई sin 2 pi. जो अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो आपका आंसर आएगा 1. सो व्हाट हैज दिस कंडीशन, वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, गिवन अस कि अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, it has become a function of coordinate only. Okay, it has become a function of coordinate only. It is not a function of time. Okay, so this is one of the important thing जो हमको velocity is independent of time दिया है. ठीक है, ये चीज इसमें आती है. तो इसलिए हमने velocity को independent of time माना, और independent of time मानने की वजह से ही हमने इसको ऐसे लिखा है. ठीक है, अदरवाइज जो फंक्शन है भी, उसको हम ऐसे फंक्शन जो है टाइम का फंक्शन, उसको ऐसे नहीं लिख सकते थे. ठीक है, अभी आप देखो इसका मैथमेटिकली हम देखते हैं कि किस तरह से हेल्प भी करेगा. अभी मैं एक काम करता हूं कि इसको 1D के लिए ही देखते हैं. ओके, तो अभी आप देखिए, सो आई हैव टू रिप्लेस d विद दिस टू फंक्शंस. सो इफ आई रिप्लेस d विद दिस टू फंक्शंस, व्हाट आई गेट, यहीं पर रिप्लेस कर देते हैं, psi xyz into e to the power I 2 pi mu t, और यहां पर भी वही लिखना पड़ेगा. ठीक है, चलो लिखते हैं. अभी आप देखिए, सिंस e to the power I t is independent of the coordinate, इसको बाहर ले सकते हैं. तो e to the power I 2 pi mu t, तो ये म्यू है, ये वेलोसिटी है, ध्यान रखना. डेल स्क्वायर
बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स। ठीक है, एक्स का कोऑर्डिनेट मान रहा हूं मैं, इज इक्वल टू, अब यहां से साई बाहर आ जाएगा क्योंकि साई इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो साई एक्स बाय वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू डेल, अगर आप देखें तो डेल स्क्वायर ई होएगा, बेसिकली आएगा, क्या होगा, डेल स्क्वायर ई टू द पावर आई 2 पाई म्यू टी बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो दो बार हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा कि एक तो आई आ जाएगा 2 पाई, तो म्यू आएगा ही आएगा, ओके, इनटू, फिर से आएगा क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट हुआ, आई 2 पाई म्यू, ओके, एंड देन विल गेट द कोऑर्डिनेट बैक ई टू द पावर आई 2 पाई म्यू टी, ओके। तो ये और ये तो कट गया, okay? So what we are getting here is this equation, और अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंशियल है ये इक्वेशन। देखिए क्या है, डेल स्क्वायर, इट इज ऑल मैथ्स बेसिकली, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स इज इक्वल टू आई इंटू आई माइनस हो जाएगा, -4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू साई एक्स। सो कॉन्सिक्वेंशियल ये हुआ इस इक्वेशन का, दिस इज द क्लासिकल वेव इक्वेशन। सो व्हाट हैज come out is that this equation, this wave equation is now independent of time. क्योंकि अब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गई है, तो अब हमको इसको फर्दर आगे नेविगेट करना और आसान हो गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से, बेसिकली इस इक्वेशन से अब हम अपना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे। बेसिकली यही इक्वेशन है, इसी को हम मॉडिफाई करेंगे। इक्वेशन यही है, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बेसिकली इज द क्लासिकल वेव इक्वेशन फॉर द वेव। ठीक है, श्रोडिंगर ने उसको केवल जस्टिफाई करके और क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स लगाकर, ठीक है, लगाकर इसको टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव किया है। और कैसे करेंगे हम, देखिए, ओके, एक हमारे पास है लैम्डा, लैम्डा इज एच बाय बी, ये वेलोसिटी है, ओके। अभी हम, अगर हम यहां से वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज बेसिकली एच स्क्वायर बाय एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, सो यहां पर पुट करो तो दिस विल बिकम, क्या हो जाएगा, -4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, वेलोसिटी हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन, ऊपर आएगा एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर इनटू साई एक्स, ओके, ये साथ में रहेगा। और अब देखिए एक इक्वेशन क्या रहती है, हमें पता है वेलोसिटी, बेसिकली वेलोसिटी की यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी को हम लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज मीटर और फ्रीक्वेंसी इज सेकेंड इनवर्स, तो वेलोसिटी इज लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। सो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी है, अगेन वेलोसिटी से हम इसको 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर एच स्क्वायर साई एक्स। तो देखो हमने बेसिकली क्या किया, वेलोसिटी जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में थी उसको हम न्यूमरेटर में लेकर आगे, लैम्डा, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी की यूनिट चेंज करके और वेलोसिटी की यूनिट चेंज करके हम, वी हैव इंट्रोड्यूस द प्लैंक कांस्टेंट हियर। तो ये आ गया बेसिकली हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं, थिंक यू अंडरस्टूड दिस, जस्ट बेसिक मैथ्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया है क्योंकि हमने वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कर दिया था। जब वेलोसिटी आप इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कर दोगे तो आपकी पूरी पूरी इक्वेशन जो है क्लासिकल वेव इक्वेशन, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बन जाएगी। अभी दिस इज अ वेरी कॉन्सिक्वेंशियल
अब देखिए क्या है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर टू साई एक्स, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स। अभी देखो फर्दर कैसे इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें से काइनेटिक एनर्जी मिल जाए, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसमें से काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली हम यहाँ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो सम फॉर्म ऑफ अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि अगर मैं इसको पूरी तरह से लिखूंगा तो आपको समझ में आएगी। हमें एक चीज इसमें मिसिंग है, एक में यहाँ पर अभी पोटेंशियल एनर्जी मिसिंग है, और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज में अभी है क्या, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें तो बेसिकली अगर मेरे को हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एम स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर साई एक्स तो है हमारे पास, कि बाकी चीजों को यहाँ ले जाओ, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर टू साई एक्स। होप आपको समझ में आ रहा है, जस्ट सिंपल मैथ्स है। क्वांटम में एक प्रॉब्लम है कि मैथ्स बहुत है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ ऑफ, अगर मैं इसको करूं तो मैं एच को क्या लिख सकता हूँ, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई, ठीक है। तो मैं पहले इसको खत्म करता हूँ, साई एक्स इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है, ये खत्म हो गया, बाय डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स। ओके, अभी देखो यहाँ से हाफ मल्टीप्लाई करो, हाफ वहां पर मल्टीप्लाई करो, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर टू साई एक्स इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स बाई 2, और डिवाइड बाय एम करो तो यहाँ से एम कम हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये एक हमको इक्वेशन मिली है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अवर, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है या पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है जो स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आई विल राइट इट एज ई के। तो दिस इज एन एब्सोल्यूट एनर्जी, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, मतलब दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, इट हैज अ वैल्यू, एम भी पता है, वी भी पता है, इनटू द कोऑर्डिनेट एम्पलीट्यूड या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर टू एम डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर टू साई एक्स, ठीक है। ये देखो एक ही बहुत जबरदस्त चीज मिली है हमें कि ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली अभी देखिए इस फंक्शन के पहले एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, इसको हम ईगन वैल्यू कहते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। और इस फंक्शन से पहले हमारे पास एक ऑपरेटर है। क्यों ऑपरेटर है, क्योंकि ये वैल्यू नहीं है, ये तो भले ही वैल्यू है, दिस इज अ वैल्यू, बट डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर इज बेसिकली गेटिंग अप्लाइड टू द वेव फंक्शन, द फंक्शन, दिस इज नॉट अ वेव फंक्शन, दिस इज अ कोऑर्डिनेट फंक्शन जिसको हम साई बोलते हैं, ठीक है। ये फंक्शन बेसिकली कोऑर्डिनेट बता रहा है हमारा एटम कौन से कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, टाइम का कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑपरेटर है। तो हमने क्या किया, हमने जब, और इसका ऑपरेटर को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। तो हम इसमें ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर को डिनोट करते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे हम, टू साई एक्स इज इक्वल टू ई के इंटू साई एक्स। ये एक बहुत जबरदस्त इक्वेशन है, इसे हम जनरली जो भी ईगन इक्वेशंस होती हैं, ईगन फंक्शंस होते हैं, उनका ये एक प्रॉपर्टी रहती है कि अगर आप ईगन फंक्शन पे, जैसे कोई ऑपरेटर अगर आप लगा रहे हो, ये ऑपरेटर लगा रहे हो, ईगन फंक्शन पे लगा रहे हो, तो बेसिकली वो उसकी वैल्यू देगा एंड इट विल रिटर्न द ईगन फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली अ, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर के लिए ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है साई का, दिस इज अ ईगन ईगन फंक्शन,
क्योंकि ये वापस अपने आप को दे रहा है और साथ में एक एनर्जी की टर्म भी दे रहा है। जरूरी नहीं है कि हर ऑपरेटर के लिए हो, पर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के लिए तो ये है ही है। ठीक है, अब सपोजिटली मैं एक काम करता हूं, मैंने तो केवल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाली। ठीक है, अगर मुझे चाहिए होती टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी चाहिए होती, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर भी डाल देता, जिसको मैं V से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, बेसिकली ई के, बेसिकली क्या करना चाह रहा हूं मैं कि ई के साथ कोई एक दूसरी एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ऐड हो जाए और मुझे साई एक्स मिल जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा, क्योंकि हमको काइनेटिक एनर्जी मिली और ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर था, तो सेम मेथड यूज कर सेम लॉजिक यूज कर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो जैसे यहाँ पर किया था वैसे यहाँ पर करना पड़ेगा कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। दिस इज ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी का, जिस किस पे लगेगा, हमारे फंक्शन पे, प्लस ऑपरेटर काइनेटिक एनर्जी का हमारे फंक्शन पे लगेगा। क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होगा टोटल एनर्जी। ओके, ई टोटल टू साई एक्स। ठीक है, तो ये अभी देखिए मैं क्यों कर पा रहे हैं ये, क्योंकि हमने यहां तक डेरिवेशन किया था। डेरिवेशन से हमको ये चीज पता चली कि एक ऑपरेटर निकल के आ रहा है, वो ऑपरेटर जब मेरे फंक्शन कोऑर्डिनेट फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो मुझे बेसिकली वो एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी, और वो फंक्शन वापस मिल जा रहा है। तो सिमिलरली यही लॉजिक लगाकर हमने क्या किया कि सपोजिटली मैं दो ऑपरेटर्स ले रहा हूँ, एक पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, एक काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, जो कि ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर यही है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। और अगर मैं अपने फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ तो मुझे टोटल एनर्जी मिलेगी और उसका, और वो जो फंक्शन है कोऑर्डिनेट फंक्शन है वो वापस मिल जाएगा। और यही इक्वेशन जो है वो उसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इसी को अगर मैं कुछ सिंपल टर्म में लिखना है कैसे लिखूंगा, मेरे को बस काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर 2m। ठीक है, तो क्या करूंगा, वी एक्स इंटू साई एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर इज माइनस एच स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई एक्स, it is equal to E total into psi x. So this is okay. So this is our Schrodinger wave equation. और ये इक्वेशन हमने कहाँ से निकाली? ये हमने इक्वेशन निकाली क्लासिकल वेव फंक्शन से। क्लासिकल वेव फंक्शन में हमने बेसिकली क्या किया था, अगर आप पूरा रिव्यू करें तो बेसिकली हमने पहले डिस्प्लेसमेंट से शुरू किया, जो हमने वेव कंस्ट्रेंट कर ली थी। बेसिकली हमने वेव डिस्प्लेसमेंट से शुरू किया और फिर हमने देखा कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट में एक कंस्ट्रेंट लगा, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दोनों पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट वाज डिपेंडिंग ऑन कोऑर्डिनेट आल्सो एंड इट वाज डिपेंडिंग ऑन टाइम आल्सो। ओके, बेसिकली हमने उसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है, जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करके हम एक ऐसे इक्वेशन पे आ गए जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, विच इज टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, अब इसी इक्वेशन को यूज कर करके हम डिफरेंट मेथड्स पे लगाएंगे और लगा कर देखेंगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेव फंक्शंस कैसे निकलते हैं, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। बट ये चीज हमको क्लियर हो रही है कि जो हमारा वेव था, पार्टिकल इन द बॉक्स था, ठीक है, जो हमने ऐसे ये वेव बनाई थी, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट थी और ये कोऑर्डिनेट एक्स है 0 से, इस वेव के लिए, पर्टिकुलर वेव के लिए जो भी हमारे पास इक्वेशन बन रही है वो वेव इस इक्वेशन को फॉलो करेगी ही करेगी, क्योंकि इसी को लेकर तो हमने सारा डिफाइन किया और अल्टीमेटली हम इस पे आ गए। तो ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो बेसिकली इस वेव की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही है। ओके, अभी मैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करके लेके आया, ताकि आपको ये चीज पता चले कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी थी, उस फंक्शन से आई, और एक ऑपरेटर हमको मिला। मतलब बेसिकली वो फंक्शन, बेसिकली जैसे आप कोई फंक्शन है, जैसे जाई वाज अ फंक्शन ऑफ एक्स, उस पे आप डेरिवेटिव कर रहे हो, आप सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हो, तो
हमने क्या किया, साई का सेकंड डेरिवेटिव लिया और उसको मल्टीप्लाई किया 10 इससे, तो हमें क्या मिला, हमको एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो इसलिए हम उसको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कह रहे हैं। और वो मिलेगा कैसे, आपको बताया मैंने। सिमिलरली सपोजिटली अगर मुझे ऑपरेटर से देखना है, तो अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पता है, तो इस ऑपरेटर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो तीन ऑपरेटर्स हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। एक तो पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, जो कि ठीक है, ज्यादा इसमें डेफिनेशन की बात नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है। कभी कभी हम ऐसे सिस्टम में अपने इलेक्ट्रॉन या एटम को डालेंगे जहां पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, उसको जीरो कर देंगे, या फिर डालेंगे तो उसको मेंशन कर देंगे। इसकी उतनी सिग्निफिकेंस उतनी नहीं है जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो एसोसिएट रहेगी ही रहेगी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो ना हो। ओके, मूव तो वो कर ही रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी रहेगी। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी से हम निकाल सकते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, सॉरी मोमेंटम ऑपरेटर। कैसे, क्योंकि आपको क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और अगर मोमेंटम निकालना है तो के इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय मास करें अगर हम, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, विच इज द मोमेंटम स्क्वायर। और सपोजिटली मुझे p निकालना है, तो p इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 2m into kinetic energy. This operator will be can be calculated by this. और अगर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या है, अब ये यहीं लिखा हमने, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये वन वन डे के लिए, तो ये पी एक्स हो जाएगा। ओके, अभी आप देखो 2m तो कैंसिल हो गया। ओके, ये बचा डेल स्क्वायर, अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो डेल बाय डेल एक्स हो जाएगा, या डी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, एच क्रॉस स्क्वायर का एच क्रॉस आ जाएगा। इसका बेसिकली आप आई लिख सकते हो, पर हम इसको माइनस आई लिखेंगे। क्यों लिखते हैं माइनस आई, बिकॉज जब भी हम दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं क्लासिकल में, तो बेसिकली हमें हमेशा मान के चलना है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है, तो उसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमें हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई करना है, ना कि केवल उसी से मल्टीप्लाई करना। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वजह से ही हमको यहाँ पर माइनस लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ये हम आगे जाके आपको बताएंगे कि क्यों कॉम्प्लेक्स लेना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो साई है, इट कैन जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल फंक्शन हो। इट कैन हैव अ फंक्शन विच कैन हैव कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, विच कैन हैव आयोटास, आयोटा इन इट। अगर आयोटा है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उसको आपको कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, उसका कॉन्जुगेट यानी कि माइनस आयोटा लेना पड़ेगा, तभी आपको मल्टीप्लाई करना होगा उसको। तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए माइनस नहीं लिख, ये आई ना लिख के माइनस आई लिखते, ताकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को भी हम ध्यान में रखें। साई dx बाई डी एक्स स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ध्यान में होना चाहिए, साई का भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ध्यान में होना चाहिए। तीन ऑपरेटर्स हो गए हमारे पास, एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, एक हो गया पोटेंशियल, सॉरी दिस इज मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। और ये सब किसके लिए डिफाइन है, दे आर डिफाइंड फॉर 1D। तो 1D सिस्टम के लिए, अगर सपोजिटली सिस्टम में थ्री डी कर दूं मैं अगर, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, सबको 3D के फॉर्म में लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर 3D के लिए साई एक्स वाई जी प्लस माइनस एच क्रॉस बाई 2m, इसको आप एक्सपेंड कर दो 3D के लिए, डेल एक्स बाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर into psi as a function of x, y, z again is equal to E total into function of y. E total into psi as function of x, y, z। तो ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई 3D के लिए। ठीक है, और इसको अगर मैं और अच्छे से डिफाइन करूं, तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को एच ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन।
ओके, हैमिल्टोनियन यानी कि इट इज गिविंग अस बोथ, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, इट इज गिविंग अस बोथ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दिस इज कॉल्ड अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ओके, एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी इस पर्टिकुलर वेव फंक्शन के लिए ईगन ईगन ऑपरेटर है, यानी कि ये फंक्शन बेसिकली हैमिल्टोनियन के लिए एक ईगन फंक्शन है, क्योंकि हैमिल्टोनियन जब इस फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो एक नॉर्मल वैल्यू दे रहा है और साथ में उस फंक्शन को रिटर्न भी कर दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन सिंप्लीफाइड वे में। खोल के ऐसे लिखना है और कैसे डिराइव हुई है, वी हैव टू गो टू द श्रोडिंगर द क्लासिकल वेव इक्वेशन। हमने एक चीज मानी है कि वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मानी है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बनती है। ठीक है, और हमें इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम चाहिए ताकि हम अपने सिस्टम को कॉम्प्लिकेट ना करें। ठीक है, सिंपल वे में इसको पढ़ पाए। अगर टाइम का लाएंगे सिस्टम तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी और फिर साई निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो होपफुली आपको अब पता चल गया हो कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे लेकर आए हैं। दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन एंड दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई into our systems to calculate energies of whatever system, whatever particle it is. Okay, so hopefully you get this, got the concept in this video. Thank you so much for watching this video. We are posting uh, almost daily questions in our community tab to practice them. वो आपके insights of chemistry को बढ़ाएगा, थोड़ा आपका knowledge को increase करेगा. So thank you so much.